So I welcome you all today on this webinar on MBBS and career of a student right from grade 12 to becoming a super specialist. The session today is going to give you a roadmap into choosing your country, your medical college, and planning for PG. More importantly, the recent new changes which has come in the entire medical education system in India. We'll be highlighting that as well, and also giving you a clear roadmap. Okay, this year has been a very different year for each one of you. Things are delayed, but at the same time, you guys are going to start something very new in the medical education system. You know, your initial batches will be pioneer batches to launch the new education under the new deformed National Medical Commission established on 25th September 2020. So a lot of things which are going to be very important, and we will be discussing in detail during this session. Do you want to really practice in India? All of us have two options. Okay, all of us, either you want a actual degree where you can get a license and practice. क्या आपको काम की डिग्री चाहिए जिसमें आपको लाइसेंस भी मिलेगा और प्रैक्टिस भी कर सकते हो, या आपको सिर्फ नाम की डिग्री चाहिए, बस डिग्री मिल जाए बाद में उसको कहीं ना कहीं यूज कर लेंगे? What do you want? Do you want a namesake degree or do you really want to practice in a hospital? ये सबसे बड़ा पहला क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना होगा. सोच रहे जो एमबीबीएस हम सिर्फ एमबीबीएस तक सोचेंगे, वो जनरली यहां पर लैंड करेंगे, उनको नेम सेक डिग्री मिलेगी. क्यों? क्योंकि उनका विजन सही नहीं है, and because of that they might fall into the trap of choosing the wrong country, wrong college, not so serious about the license exam preparation. तो विदाउट लाइसेंस के डॉक्टर बन सकते हैं, या फिर वो बहुत सारे पैसे अपने पेरेंट्स के बर्बाद कर सकते हैं. तो आपको बहुत जरूरी है चीजों को आउटराइटली अच्छे से समझना. ऑलराइट, the reason is very simple. The National Medical Commission had made it mandatory. If you clear the license exam, only then will you be allowed to work in a hospital accredited by NABH, or you can start up your own clinic. Things have drastically changed due to this centralized exam called as NEXT. Prior to this, क्या होता था? Those students who used to go for MBBS abroad, only ये students को license exam लिखनी पड़ती थी. और अगर आप इंडिया के किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, गवर्नमेंट में या प्राइवेट में, आपको किसी भी प्रकार के लाइसेंस एग्जाम की जरूरत नहीं थी. मोरओवर, जिन बच्चों को नीट पीजी करना है, जिनको पीजी करना है, उन्हीं को नीट पीजी देनी थी. बेसिकली इट वाज अ ऑप्शनल थिंग, कोई कंपलसरी नहीं था. बट नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड थैंक्स टू दिस centralized exit examination for MBBS. Once the NMC board has been established, the next exam has become a reality. A common exit examination for MBBS will be introduced. This will play a dual role. ये not only आपको लाइसेंस देगा, but also PG के एडमिशन के रास्ते ओपन करेगा. सो नेक्स्ट इज रियलिटी, एंड नेक्स्ट के लिए सीरियस होना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अगर मेडिसिन जैसे करियर में जा रहे हो जहां पर इतना टाइम लगता है, इतना पैसा लगता है, तो आपको समझना पड़ेगा देयर इज नो लॉन्गर FMGE, देयर इज नो लॉन्गर नीट पीजी, देयर इज ओनली वन एग्जाम ऑफ एन इंटरनेशनल लेवल, ऑफ अ डिफिकल्टी लेवल, जस्ट लाइक एनी ग्लोबल एग्जाम, of a quality which will test your patient management skills. This is your new examination called as NEXT. तो आप अपने आप को ये क्वेश्चन पूछना जरूरी है,
are you next ready? Because whenever there is a license exam coming into picture, pass rates बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. आज की डेट में जो FMG एग्जाम है उसका पास रेट इज ओनली 20%, विच मीन्स इंडिया में ऐसे 80% स्टूडेंट्स हैं जो अब्रॉड से आए हैं बट उनके पास लाइसेंस नहीं है. कोरोना काल में ये डॉक्टर गवर्नमेंट को बोल रहे थे क्या हम आपको हेल्प करें. कितने डॉक्टर है ऐसे? 25 डॉक्टर तो नहीं कहेंगे उनको, जिनके पास नाम की डिग्री है. ऐसे 25,000 लोग हैं, नाम की डिग्री है बट दे कैन नॉट प्रैक्टिस. क्यों? क्योंकि लाइसेंस एग्जाम इतना सीरियस और इतना इंपॉर्टेंट है वो तो पता ही नहीं था. गॉन आर द डेज कि आप ठीक है देखेंगे. नो, अगर मेडिसिन करियर में एंटर करना है तो लाइसेंस एग्जाम की तैयारी फर्स्ट ईयर से करनी पड़ेगी. एंड बिकॉज इट इज वन सिंगल एग्जाम जिसका दो फायदा होने वाला है, ड्यूअल बेनिफिट है. एक, यही एग्जाम से आपको लाइसेंस मिलेगा और यही एग्जाम से आपकी पीजी की सीट तय होगी. इसीलिए नाउ मोर देन एवर इट हैज बिकम इंपॉर्टेंट दैट यू think about license exam preparation from first year. Please understand that very, very clearly. Okay, this is going to be the entire very, very important discussion. All right, great. So now let us quickly understand a very, very simple question. मेडिसिन एज अ करियर में अगर हमें एंट्री लेना है तो हमारा प्लान किस तरह से होना चाहिए, किस तरह की मेडिकल कॉलेज चूज करनी है, चाहे इंडिया हो या अब्रॉड हो, किस तरह से मनी का प्लानिंग लगेगा. वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग. तो लेट अस क्विकली अंडरस्टैंड द 3 लेवल्स ऑफ MBBS. ओके, कहां से क्या करना चाहिए, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट आपको समझ जाए कि अंडर ग्रेजुएशन ये कहां से करना है, पीजी ये कहां से करना है और सुपर स्पेशलाइजेशन ये कहां से करना है. These 3 different things are very, very important. अगर किसी को कार्डियोलॉजिस्ट बनना है तो पहले तो MBBS करना होता है, उसके बाद MD मेडिसिन होता है, उसके बाद DM इन कार्डियोलॉजी होता है. ओके, अगर आपको कार्डियोथोरेसिक सर्जन बनना है तो पहले MBBS करना होता है, बाद में MS सर्जरी होता है एंड फिर MCH इन कार्डियोथोरेसिक सर्जरी होता है. तो ये जो मेडिसिन का करियर है ये 3 लेवल में बटा हुआ है. सो प्लीज अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग बिफोर यू फाइनलाइज एनीथिंग. ओके, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो कहां से आपको यूजी करना है, कहां से पीजी करना है और कहां से सुपर पीजी करना है, ये बहुत जरूरी अच्छे से समझ लो. नॉट नेसेसरी एवरीथिंग आपको एक ही कंट्री से करना है. ठीक है, so now let us understand where are you going to do your UG. okay, तो आपका जो MBBS है, जो जितने भी इंडिया में स्मार्ट स्टूडेंट्स है जो रियली डॉक्टर बनते हैं, उनको एक चीज तो पता है कि अगर MBBS करना है तो कंपलसरी वो गवर्नमेंट कॉलेज से होना चाहिए. 1 रूल. सेकेंड रूल होता है कि मिनिमम 80 to 100 ईयर ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए. 100 ईयर ओल्ड, 80 ईयर ओल्ड, जिसके पास एक्सपीरियंस हो. क्योंकि पिछले 5 साल में आपने देखा होगा इंडिया में बहुत सारी नई मेडिकल कॉलेजेस ओपन हुई थी और कोई ना कोई MCI रेगुलेशन की वजह से शायद बंद हो गई, शायद उनका रिकॉग्निशन चला गया और काफी कंफ्यूजन हुआ था. तो जनरली जो स्मार्ट स्टूडेंट्स है वो न्यू कॉलेजेस अवॉइड करते हैं ताकि अपने करियर को रिस्क ना दिया जाए. ठीक है, तो एक तो क्लियर है कि गवर्नमेंट कॉलेज में इंडिया में एडमिशन लेना है. 100 ईयर ओल्ड, 80 ईयर ओल्ड, मिनिमम इनका एक्सपीरियंस होना चाहिए. 60 to 80 ईयर ओल्ड यूनिवर्सिटी हो तो बढ़िया है.
बाय चांस अगर इंडिया में गवर्नमेंट में ना मिले, ओनली देन पीपल थिंक अबाउट अब्रॉड, दैट इज यूक्रेन, रशिया और चाइना। हाउएवर, प्लीज अंडरस्टैंड, ये ऑप्शन आपका तभी रहेगा जब इंडिया में गवर्नमेंट नहीं मिलता। सो नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट अबाउट प्राइवेट कॉलेज? The only concern with private colleges in India is availability of faculty. बहुत सारे जगह पे गोस्ट फैकल्टी होती ही नहीं है, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर्स के प्रॉब्लम होते हैं। और अगर आपने अच्छे से रिसर्च नहीं किया, 50 लाख से 1 करोड़ रुपए डाल दिए, एंड आफ्टर दैट इफ यू डोंट क्लियर द नेक्स्ट एग्जाम, तो सारा पैसा और इतना टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। सो जो स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं उनको क्लैरिटी है कि एमबीबीएस होना चाहिए फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज, मिनिमम 100 ईयर ओल्ड, अवॉइड न्यू गवर्नमेंट कॉलेजेस, अवॉइड प्राइवेट कॉलेजेस फॉर अंडर ग्रेजुएशन। अच्छा, तो somebody is asking on the chat column, sir, what about MBBS from US, Canada, Australia? प्लीज अंडरस्टैंड, एमबीबीएस जो यूएस कनाडा से होता है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, बहुत महंगा होता है। प्लस नंबर ऑफ इयर्स, यूएस में जब आप जाते हो पहले 4 साल का बीएस करना पड़ता है, उसके बाद एमकैट एग्जाम देनी पड़ती है, एंड आफ्टर दैट यू डू एमडी। तो टोटल 8 साल का ये कार्यक्रम होता है, एंड मिनिमम 4 करोड़ रुपए का आपका खर्चा होता है। ओके, यूके, ऑस्ट्रेलिया, ये सब जगह पे 2-3 करोड़ का खर्चा होता है एज अ फीस। सो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, राइट? However, some students feel ultimately out of India ही सेटल होना है, तो वो करेबियन आइलैंड से कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आप करेबियन आइलैंड में जा रहे हो तो जो जेन्युइन यूनिवर्सिटीज है, जिनकी रैंकिंग अच्छी है, जो जैसे इंडिया में एमसीआई एनएमसी होता है वैसे वहां की बॉडीज में लिस्टेड है, उनका बजट मिनिमम 1 से 2 करोड़ का होता है। बट वही बात है, अगर हमें सही जानकारी नहीं है और किसी गलत एजेंट के हाथ में आ गए, तो देर आर लॉट ऑफ ब्लैक लिस्टेड यूनिवर्सिटीज विच आर नॉट अप्रूव्ड बाय सर्टेन एजेंसीज। ऐसी यूनिवर्सिटीज जो आपको 30 लाख 40 लाख जितना पैसा बोलोगे वो बोलेंगे चलेगा हमें दे दो, तो ऐसी यूनिवर्सिटीज के दूर रहना है आपको। ओके, आइलैंड्स के नाम है उस जनरली जो नोटोरियस आइलैंड्स है जहां पर जनरली प्रॉब्लम्स होते हैं, अवॉइड करो। बारबाडोस, गयाना, ये सब आइलैंड्स पे तकलीफ है, ठीक है? जमाइका, अगर कोई भी कॉलेज इस आइलैंड्स पे हो तो चेक करो क्या वो कॉलेज वैलिड है, क्या एक्रेडिटेशन सही से है, चीजें बराबर है। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज यू विल कैच होल्ड ऑफ फ्रॉड। सो बीवेयर ऑफ फ्रॉड। अच्छा, यूक्रेन, रशिया, चाइना में भी आपको चेक करना है क्या इंग्लिश स्पीकिंग इंस्टीट्यूशन मिल रही है, क्या ट्यूशन फी डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को पे करना है। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो यूजी के लिए सब स्टूडेंट्स को एक क्लैरिटी है कि अंडर ग्रेजुएशन करना है तो इंडिया से, वो भी ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज से करना है। पीजी की बात करें, पीजी के लिए क्या करें, क्योंकि प्लानिंग तो पीजी तक की करनी है। तो पीजी के लिए जनरली स्टूडेंट्स इंडिया अवॉइड करते हैं, उसके 5 रीजन है। सबसे पहला रीजन, इंडिया में पीजी की सीट्स बहुत कम है। जब 100 स्टूडेंट्स एमबीबीएस में एडमिशन लेते हैं, 10 बच्चों को एमडीएमएस में एडमिशन मिलता है, एक ही बच्चा कार्डियोलॉजिस्ट बनता है। तो बाकी के 9 बच्चों को क्या करना पड़ेगा, तो बाकी के 9 बच्चों के पेरेंट्स को प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 1 से 3 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। अच्छा, एमबीबीएस तो गवर्नमेंट में मिल गया, मगर पीजी के लिए प्राइवेट में एडमिशन लेना पड़ेगा, जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। ये क्यों होता है? बिकॉज मोर देन 40% सीट्स तो कोटा में चली जाती। और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि स्टाइपेंड पीजी के दौरान बहुत कम मिलता है, ओनली 50,000 पर मंथ। उसके अलावा क्या इश्यू है? उसके अलावा जो इश्यू है वो है सुपर स्पेशलाइजेशन का। इंडिया में नीट यूजी यहां पर बच्चे देते हैं, बहुत सारे बच्चों का यहीं पे ड्रॉप ईयर लगता है, 1 साल तो यहीं वेस्ट हो जाता है।
अभी पीजी के लिए कंपलसरी है लाइसेंस एग्जाम देनी है, बहुत सारे बच्चों को यहां पर भी ड्रॉप ईयर लगेगा क्योंकि सबको सीट मिलती नहीं है। और अगर सुपर पीजी करना है, इतना कम था क्या कि 2 एग्जाम है कि 2 साल पहले गवर्नमेंट ने एक और एग्जाम अनाउंस कर दी, नीट सुपर स्पेशलाइजेशन। तो इस वजह से क्या हो गया कि यहां पर भी लोगों को ड्रॉप ईयर लगना चालू हुए। एंड एवरेज एज अगर बच्चा एमबीबीएस, एमडीएमएस और पीजी इंडिया में करता है तो 32 इयर्स के पहले सेटल नहीं होता। एंड अगर एक आध चीज प्राइवेट कॉलेज से की तो सिर के ऊपर रहता है 1 करोड़ रुपए का लोन। तो ये सारी जानकारी बहुत अच्छे से समझो। बहुत सारे जन पूछ रहे नीट का XYZ स्कोर है, कहां मिलेगा, क्या मिलेगा, वो हम डिस्कस करेंगे। पहले ये इंपॉर्टेंट बातें तो समझो। इंडिविजुअल आज आप 300 लोग वेबिनार में हो, मैं 300 के 300 के अलग अलग स्कोर के हिसाब से बात नहीं कर पाऊंगा। उसके लिए हमारे काउंसलर्स पर्सनली आपको अच्छे से बात करेंगे। हावेवर आपको एक बात समझना पड़ेगा, जो स्ट्रैटेजी यूज करके आप एक कॉलेज खुद अच्छे से ढूंढ पाओ, आप अपना रिसर्च कर पाओ, उसके क्या पैरामीटर होने चाहिए, वो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सब बच्चों को यह पता चल गया कि एमबीबीएस तो इंडिया से ही करना है, पीजी कहां से करना है। तो जो इंडिया के स्मार्ट बच्चे, आप इंडिया की टॉप 10 कॉलेजेस में चले जाइए और किसी भी स्टूडेंट को पूछिए पीजी का क्या प्लान है, सब जन एक ही नाम लेंगे कि हम ये एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसका नाम है USMLE। ये एग्जाम यूएस के पीजी के पीजी में एडमिशन के लिए कंपलसरी होता है। अब आप बोलोगे ये USMLE एग्जाम फर्स्ट ईयर से क्यों बच्चे प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि उसके 5 फायदे हैं। अमेरिका में पीजी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 भी रुपए का फीस नहीं होता। दूसरा, अमेरिका में जब आप पीजी करते हो तो आपको महीने का 3 से 4 लाख रुपए का स्टाइपेंड मिलता है। तीसरा, जितने इंटरनेशनल बच्चे सिलेक्ट होते हैं हर 2 में से 1 बच्चे को एडमिशन मिलता है, जैसे इंडिया में 10 में से 1 बच्चे को, तो कंपटीशन कम है। फोर्थ, किसी भी प्रकार का कोटा सिस्टम वहां नहीं चलता। फिफ्थ, जैसे इंडिया में आपको बताया कि वापस एक और एग्जाम देनी है, यूएस में ऐसा नहीं है। ये फेलोशिप हो या पीजी हो, रेसिडेंसी हो, दोनों के लिए बराबर की एक यूएसएमएलई की सीरीज ऑफ एग्जाम है, उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाता है फॉर पीजी एज वेल एज सुपर पीजी। ठीक है, तो इन शॉर्ट, आप इंडिया से अगर एमबीबीएस करते हैं या फिर गवर्नमेंट कॉलेज, अप्रूव्ड कॉलेज इन रशिया, यूक्रेन से एमबीबीएस करते हैं जो 100 ईयर ओल्ड है, और पीजी अमेरिका से करते हैं, तो आप 27 ईयर्स के एज में सेटल होंगे और बैंक बैलेंस आपकी पॉजिटिव 1 करोड़ रहेगी। बस उसकी तैयारी मोक्ष के स्टूडेंट फर्स्ट ईयर से करते हैं। So all we are trying to tell you, whether you take admission in India or abroad, prepare for these license exam from first year. Is it clear? Absolutely. Both exams की preparation साथ में होती है। अंशुमन, नीट पीजी खत्म हो गया, एम्स पीजी खत्म हो गया, अब आया है नेक्स्ट कॉलेज। ओके, अब आया है नेक्स्ट कॉलेज। ओके, नाउ द क्वेश्चन बाय मुस्कान, what about AIMS Delhi? विशाल इज आस्किंग न्यू गवर्नमेंट कॉलेज में क्या प्रॉब्लम है, हम वही डिस्कस करेंगे। हाउ टू फाइंड आउट वेदर माय कॉलेज इज न्यू और ओल्ड, हाउ टू फाइंड आउट कि मैं जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूं क्या वो मेडिकल कॉलेज अमेरिका में अप्रूव्ड है जिससे मुझे फ्री में पीजी की सीट मिलेगी। एग्जैक्टली शिवांगी। अनुज इज आस्किंग सर अगर पीजी अमेरिका में किया तो इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं। एब्सोल्युटली यस, अमेरिकन डिग्री इज वेरी मच रिकॉग्नाइज। आप इंडिया की टॉप नॉच कॉलेज में चले जाइए, आपको सारे जो डॉक्टर्स बड़े बड़े मिलेंगे उन्होंने आइदर रेसिडेंसी या फेलोशिप अमेरिका से की होगी। आप फिर भी इंडिया की टॉप नॉच प्राइवेट में चले जाइए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चले जाइए। तो अभी जो क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों ने पूछा है, हाउ टू फाइंड आउट when my college is approved in America or not, how old is my college, क्या वो 2 साल पुरानी है कि 100 साल पुरानी, कैसे पता चलेगा हमें। how to choose a right medical college, तो source to choose a right medical college is going to be World Directory
ऑफ मेडिकल स्कूल्स। ठीक है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल? क्योंकि इंडिया में 517 मेडिकल कॉलेजेस है, मगर अगर आपको इंटरनेशनल करियर बनाना है तो वर्ल्ड डायरेक्टरी में सिर्फ 350 मेडिकल कॉलेजेस अप्रूव्ड है। अगर आप 105 और 55 में एडमिशन लेते हो तो आपकी कॉलेज आज की डेट में अप्रूव नहीं है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब आप बोलोगे सर ये वर्ल्ड डायरेक्टरी में चेक कैसे करें? तो बहुत सिंपल है, wdoms.org पे चले जाइए, अपना मेडिकल स्कूल ढूंढिए, स्पॉन्सर नोट ढूंढिए एंड आप अपना कॉलेज ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा क्या यूनिवर्सिटी 100 ईयर ओल्ड है या 5 ईयर ओल्ड है या 2 ईयर ओल्ड है, सब पता चल जाएगा। तो आप अपना रिसर्च खुद करो। दैट इज द रीजन आई एम नॉट टेलिंग यू कि एक्स यूनिवर्सिटी ज्वाइन करो या वाई करो। ऑल आई एम डूइंग इज आपको अपना खुद का रिसर्च कैसे करना है वो तरीका हम आपको बता रहे हैं। तो यहां पर चले जाइए वर्ल्ड डायरेक्टरी। ठीक है, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल। लेट अस ऑल गो टू द वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल एंड फाइंड आउट किस तरह से मेडिकल कॉलेज फाइंड करना है। श्रुति, यस यू कैन आस्क। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज एम्स पीजी। अब सब खत्म हो गया, नीट पीजी एम्स पीजी सब खत्म, अभी सिर्फ नेक्स्ट एग्जामिनेशन है, दैट्स इट। Absolutely. After doing a PG in America, you can settle in India, no problem. So can anybody give me an area in India जहां पर आप ऑलरेडी अभी स्टडी कर रहे हो या आप कॉलेजेस ढूंढ रहे हो? कोई भी आप सिटी बता दीजिए जहां पे आप करंटली हो और मेडिकल कॉलेजेस ढूंढ रहे हो, तो आपको मैं बता देता हूं वर्ल्ड डायरेक्टरी यूज कैसे करते हैं। ठीक है, ओके, आई हैव गॉट मेनी नेम्स बट वन नेम विच आई गॉट इज बैंगलोर। So you might be shocked. Who was that? Bangalore, Prachi. Lot of medical colleges which you have heard are not even in the list. आप देख रहे हो only 13 colleges are in the list. Approval तो हम बाद में बात करेंगे. For example, Prachi, you are from Bangalore. I'm sure you might have heard a name of a college called as Lady Curzon. Can you find the college in this list? No. The name itself of the college is not there in the list. अच्छा, नाम एक लिस्ट में आना अलग बात होता है, दूसरा बात होता है अप्रूवल इन यूएस और कनाडा। दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू चेक। In Bangalore, there are many such colleges, but are they approved? For example, let us see one college, Akash Institute of Medical Science and Research, private, 2016. Is it approved in America? Is it approved in Canada? Let us see. कैसे पता चलेगा? बहुत सिंपल है. You need to check the sponsor note. Press the button on this and you will find out whether that college is approved or not. So let us see. 2016 private. Is it approved? No. So अगर स्टूडेंट ने यहां पर एडमिशन लिया तो कैन ही डू अ फ्री पीजी इन अमेरिका? कैन ही राइट द यूएसएमएलई एग्जाम? नो, he is not allowed to write the USMLE examination. So if you don't do your research and choose a random college, there will be issues. Okay, so in the same Bangalore city, let us see another college so that you understand what I am trying to tell you. Bangalore Medical College and Research Institute, 1955, almost 70-80-year-old university, government. Is it approved in Canada and US? Absolutely yes. No problem at all. I hope this is clear. Now somebody was asking what is the problem with new medical colleges? प्रॉब्लम नहीं है कि बहुत अगर एमसीआई के रेगुलेशंस नहीं होते तो कभी कभार ऊपर नीचे होता है एडमिशन साइकिल एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं हुए इन न्यू कॉलेजेस, लैक ऑफ फैकल्टी, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो कॉलेजेस बंद होती है, ओपन होती है, तो इश्यूज है। ओके, तो इट्स नॉट दैट इजी। प्लस the new colleges are not approved in America and Canada.
How many of you are interested in AIMS? All of you want to join AIMS? Good. Now, if somebody joins AIMS, let's say हमने देखा AIMS न्यू दिल्ली, ठीक है? Is it approved in America? Absolutely yes, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर हमने रिसर्च नहीं किया, हमने बोला एम्स तो एम्स होता है, कोई भी एम्स ज्वाइन कर लेते हैं, और किसी ने एम्स नागपुर ज्वाइन कर लिया, कैन ही राइट द यूएसएमएलई एग्जामिनेशन? व्हाट डू यू थिंक? 2018 गवर्नमेंट, exactly, the student cannot write the USMLE exam because the college is not approved in Canada or US. That is the reason I am saying, do your research well. It is very, very important. Are you looking to do a free PG in America or no? So how do you find out? Is by doing your own research on World Directory, wdoms.org. So how do you find examples of ECFMG approved university? अच्छा, ये इंडिया नहीं, वर्ल्ड में कहीं पे भी हो, सब जगह पे ये चेक करना आपको जरूरी है. For example, UMSA in Ukraine, Pirogov in Russia, Vitebsk in Belarus, all are approved university. But let's say, if you don't do your research properly, and you watch some YouTube videos, what can happen with your career? How many of you have seen a YouTube video where somebody is saying this is the best university? Have anybody seen the YouTube video जहां पर बोला गया है कि आप यूक्रेन जाओ और यहां पर जाओ, आपका तो करियर बन जाएगा? So this is what happens when you follow YouTube. Do not take this. Absolutely right, Shivangi. So be very, very careful. You need to make your own career. अच्छा, if you say यूक्रेन में ये प्रॉब्लम है तो आपको बोलेंगे जॉर्जिया चले जाओ, सेम हालत है, कोई डिफरेंस नहीं है. यूट्यूब पे ये भी ये नाम बहुत फेमस चल रहा है. सो आपको रिसर्च करना पड़ेगा. डू योर रिसर्च प्रॉपरली. अच्छा, साउथ इंडिया में लॉट ऑफ पीपल आर फूल्ड विद दिस यूनिवर्सिटी. उनको बोलते हैं नाम अमेरिकन है तो आप तो बस अमेरिका 100% पहुंच जाओगे. इज द यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड इन अमेरिका? नो, इट इज नॉट. अच्छा, यूपी बिहार में बहुत सारे बच्चों को बोलते हैं किर्गिस्तान नंबर 1 जगह है. क्या यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड है? नो, इट इज नॉट. सो बी वेरी, वेरी केयरफुल. डू योर रिसर्च वेरी वेल. Choose a right university and choose a right college. Okay, Ukraine में people are recommended Lviv Medical Institute. Is it approved? No, it is not approved. Okay, so be very, very careful about this. Do your research well. In every state and every country, World Directory check करो. Ravi, we will talk about that. तो रवि इज आस्किंग, अगर इंडिया में एडमिशन लेना है तो कौन सी कॉलेज में एडमिशन ले जहां से चांसेस यूएस के बढ़ जाते हैं? तो हम इंडिया नहीं, हम सारे कंट्रीज की बात करेंगे, क्योंकि हमने भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को पूछा, हमने पुराना परफॉर्मेंस देखा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देखा, फैकल्टी से बात की. तो अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स, अगर इंडिया में एडमिशन लेना है और अल्टीमेटली यूएस में सेटल होना है, तो दीज आर द कॉलेजेस जहां पर एडमिशन लेंगे तो यूएस का रास्ता खुल जाता है आपके लिए. तो अगर इंडिया में एडमिशन, आप देख सकते हो इंडिया की ये सारी कॉलेजेस एंड रेस्ट ऑफ कॉलेजेस, इतने कम लोग हैं फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कॉलेजेस. सो यू नीड टू डू योर रिसर्च वेल. अगर आपको फ्री में पीजी करना है, पेरेंट्स के 1 करोड़ वेस्ट नहीं करने हैं, तो चूज द राइट मेडिकल कॉलेज. अगर किसी को रशिया जाना है तो भी कॉलेजेस का लिस्ट है जो टॉप नॉच है, जो अमेरिका में जहां पे बच्चों को ज्यादा एडमिशन मिले हैं, रिकॉग्नाइज्ड है, 100 ईयर ओल्ड यूनिवर्सिटीज है. पिरोगोव, कजान स्टेट, प्रीमिया, सेचिनो, दैट्स इट. इसके नीचे मत जाओ. रैंकिंग चेक करना बहुत जरूरी है. इंडियन एम्बेसी ने रैंकिंग दे रखा है रशिया का. अच्छा, यूक्रेन जाना चाहते हो तो उम्सा,
लवीव मत, गवर्नमेंट वाला लवीव, लवीव नेशनल मेडिकल इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, नॉट लवीव इंस्टीट्यूट, बिकॉज एजेंट्स बहुत फूल करते हैं। आप लवीव बोलोगे वो आपको लवीव इंस्टीट्यूट भेज देगा। You need to be very careful. Vinnytsia, no problem. Bukovina, no problem. So do your research well. Don't worry, Anamika. For that also you require to clear the next examination, and we will tell you. Ishant, Government College Jammu, GMC, best institutions. In fact, I have done seminars all over India, and one of the brightest students are studying in GMC Jammu. Okay. अच्छा, जिनको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है, फॉर देम इट इज बेटर कि आप करेबियन मेडिकल कॉलेज में चले जाइए, ठीक है। रादर देन टेकिंग एडमिशन इन अ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, यू माइट एज वेल टेक एडमिशन इन करेबियन मेडिकल कॉलेज, बट आपका बजट भी सही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इंडिया में 70 लाख के नीचे मिलता नहीं है, और 70 लाख के ऊपर का अगर आपका बजट है तो माइट एज वेल आप करेबियन यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करके यूएस चले जाइए। अल्टीमेटली डिसीजन आपका है, सबका सुनो, करो अपना। योर वन डिसीजन कैन मेक और ब्रेक और योर करियर, ऑलराइट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So be very very careful about this. So lot of students are asking about individual colleges in their particular state and city. Friends, आप देख रहे हो, we are almost 300 plus students. We cannot check for each and every student, but आपको once again बता रहा हूं, वेबसाइट का नाम है wdoms.org। आप यहां पर टाइप कर सकते हो, आप चाहिए तो ये मैं पेज आपको ओपन कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कैसे फाइंड कॉलेज, बहुत सिंपल है, ठीक है, ये वेबसाइट पर चले जाइए। ऑलराइट, नाउ लेट मी ऑल्सो टेल यू वन इंपॉर्टेंट थिंग। अब एक और बात है, चाहे आप इंडिया में एडमिशन लीजिए या अब्रॉड में एडमिशन लीजिए, प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, आपको लाइसेंस एग्जाम की कोचिंग करनी है नहीं करनी है आपकी चॉइस है। आप किसी रोड साइड एजेंट के पास जाओगे, वो कहेगा इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज ही इज देयर टू जस्ट मेक मनी। इसीलिए वो इंस्टाग्राम फेसबुक पे आपको गलत गलत यूनिवर्सिटीज की एड दिखाता है, वो आपको जॉर्जिया बताता है, वो आपको फिलीपींस बताता है, वो आपको नेपाल बताता है। आपको लाइसेंस मिले ना मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, but at Moksha thousands of students are becoming licensed physician. Why? Because from first year they are preparing for USMLE or the next examination. So ultimately choice आपकी है, जिसके पास ये ऑप्शन नहीं है वो तो कहेगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। All of you know this story, grapes are always sour, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं एंड अंडरस्टैंड करते हैं हाउ फ्रॉम 8 डिफरेंट कंट्रीज thousands of students are currently preparing for the next and the USMLE exam on the Moksha Academy platform. चाहे आपको इंडिया की मेडिकल स्कूल में एडमिशन मिले या अब्रॉड में, ओके, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। व्हाई प्रिपेयर फ्रॉम फर्स्ट ईयर? क्योंकि मेडिकल एजुकेशन अभी कंप्लीटली चेंज हो चुका है ड्यू टू द न्यू MCI कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम, जिसके बारे में हमें डॉक्टर पॉल अब बताने वाले हैं थोड़ी देर में। The students of Moksha prepare with us from first year. They are enrolled in our program on an online Moksha Academy program from first year, either for the next exam or USMLE exam. उसके कई कारण हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करते हो तो आपकी चीजें टाइम टू टाइम, प्लानिंग टू प्लानिंग होती है। जो नया करिकुलम MCI का आया है वो फोकस करता है पेशेंट सेंटर्ड लर्निंग पे। सो जो बेसिक मेडिकल साइंस सब्जेक्ट्स है इसको कोई अलग से नहीं पढ़ना, बट आप जब एनाटॉमी पढ़ रहे हो तो उसका यूज सर्जरी में क्या है वो आपको पता होना चाहिए। जब आप फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हो तो उसका यूज मेडिसिन में क्या है वो आपको पता होना चाहिए। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग। स्टूडेंट्स हु प्रिपेयर विथ अस फ्रॉम फर्स्ट ईयर
appear the first exam of USMLE right in the 3rd year. Because of this, इनका जो foundation है इतना strong होता है that passing this license exams comparatively becomes easy. More importantly, right after the next exam, these students will appear USMLE Step 2 CK, CS, then go to America for rotations and matching. Because of the first year से जो systematic preparation मोक्ष के प्लेटफॉर्म पे होता है, students are able to save a lot of money. Because आज आप दिल्ली के गौतम नगर में जाओगे तो आपको 25,000 ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे जो गलत एजेंट के चक्कर में जॉर्जिया, फिलीपींस, नेपाल ऐसे कंट्रीज में चले गए थे एंड लाइसेंस एग्जाम की तैयारी नहीं की थी, और पिछले 3-3, 4-4 सालों से लाखों रुपए वेस्ट करते हुए अभी तक वो गौतम नगर में पढ़ाई कर रहे हैं. डू यू वांट टू डू दैट? दूसरी बात, आपके लाइफ के प्रेशियस इयर्स बच्चे 1 साल ये एग्जाम क्लियर करने में निकालते हैं, 2-3 साल 5.5 to 6 years. Why do you want to waste extra years of your life? बट अगर आप फर्स्ट ईयर से करते हो तो ये एक्स्ट्रा साल वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, यहां पर वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. तो थिंग्स बिकम सिस्टमैटिक, थिंग्स बिकम स्मूथर एंड कॉस्टिंग बिकम्स लॉट चीपर. सो इसीलिए जो स्टूडेंट्स है दे हैव अ क्लियर कट विजन एट मोक्ष. There are more than 1,000 students from 8 different countries who are preparing with Moksh on a digital platform for global medical students. Okay, how the students are preparing, I will give you a demo of that as well, so that you have a complete picture of how students prepare on the Moksh platform. Okay, let us understand this. जितने भी स्टूडेंट्स मोक्ष के प्लेटफॉर्म पर होते हैं, एवरीबडी फ्रॉम फर्स्ट ईयर हैज एक्सेस टू द मोक्ष एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. सारे स्टूडेंट्स के पास एक्सेस होता है फॉर मोक्ष एकेडमी ऑनलाइन, चाहे वो इंडिया की मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले या अब्रॉड की मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले, डजंट मैटर. एवरी स्टूडेंट is very clear that they are going to prepare from first year on this platform. ये प्लेटफॉर्म में बेनिफिट क्या है, दैट आप किसी भी कंट्री में रहे, आपका कॉन्सेप्चुअल ट्रेनिंग पहले साल से पेशेंट ओरिएंटेड केसेस के बेसिस पे चलता है. दैट इज व्हाट वी फोकस ऑन. You have access to live classes, assignments and mock test from first year. You have access to faculties teaching from different part of the world. For example, Dr. Sharma ये जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी यूएस के पास आउट है. Dr. Joshi, he is a faculty currently teaching in a medical college in America. So you have best of the faculties teaching you the subjects on the Moksh platform. So that is what you will be able to understand. Dr. Dhruv Romanur ये कनाडा से अपने बच्चों को टीच करते हैं. He is a graduate from Government College Chennai, Madras Medical College 30 years ago, and last 30 years he has been teaching in 3 different continents. So we have experienced faculties who are here to make your career. So that is what you will experience on the Moksh platform. आपके live lectures, और जब भी आप free हो, whenever you are free to watch lots of conceptual videos, ताकि आपकी concepts strong हो जाए. These are designed especially for students to make their career well. Alright, तो आप देख सकते हो on this platform, students watch these small conceptual videos. जैसे ही मैंने वीडियो देख लिया, I can download notes, I can report if there are mistakes, I can ask if there are doubts. तो बहुत सिस्टमैटिक वे में आपके लाइव लेक्चर्स होते हैं, आपको रिसर्च आर्टिकल्स के एक्सेस मिलता है. मोर इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन बैंक, thousands and thousands of questions are there
which are patient case oriented. Please understand, आपको जो टेस्ट दी जाती है वो सारी पेशेंट केस ओरिएंटेड टेस्ट होती है, एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू सॉल्व. एंड जब आप पेशेंट केसेस सॉल्व करते हो, जब आप लाइव लेक्चर अटेंड करते हो, जब आप रिकॉर्डिंग वॉच करते हो, तो our artificial intelligence system gets activated. We come to know how you are ready, topic wise, subject wise, system wise, or medical college में you require a support. This online support actually tells you what are your weak areas, what are your strong areas. ये पूरा डिटेल्ड रिपोर्ट नॉट ओनली इज सेंड एंड शेयर्ड विथ यू बट ऑल्सो विथ योर पेरेंट्स एवरी मंथ. आपने कितने लेक्चर्स अटेंड किए, आपने कितने लेक्चर्स देखे, क्वेश्चन बैंक कितना सॉल्व किया. एंड our aim is very simple. When you join in the first year, you might be weak in all the subjects, but जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, आपके सारे सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए. Artificial intelligence software does this, where extensive patient cases आपको दिए जाते हैं, where we test how you are exam ready, and that is what is the success of मोक्ष program. प्रॉब्लम यही होता है कि लोग, अगर आप जाओ तो आइदर आपको कोई रिकॉर्डिंग वीडियो दे देंगे या फिर आपको टेस्ट सीरीज दे देंगे, बट आपको कभी कोई बताता नहीं है आप कहां पर वीक हो, कितने वीक हो, आपको आपके एफर्ट्स कहां पर लगाने हैं. दैट इज व्हाट मेक्स अ डिफरेंस, एंड दैट इज व्हाट वी डू ऑन द मोक्ष एकेडमी प्लेटफॉर्म. Alright, so this is how the Moksh program runs, where we train you extensively on our live platform for USMLE, for Next, and more importantly, our target is to make you a licensed physician. So I will repeat what I mentioned at the start, कि जो MBBS career है, it's a long. You need to plan, especially with the new NMC regulations and the competency based curriculum. What is your plan for college examinations? If you don't clear the license exam, how will you even get a degree? And while you prepare for USMLE, you can do a free PG in the US. So your roadmap or your planning has to be for the next 8 to 10 years. This is the clarity which I want each one of you to have. All right.